ہمارے سے آدھا خوشی چھینا ہوا ہے کیونکہ بھائیوں سے جدا ہو گیا. اس کے بعد ماں باپ ان کا ساتھ ان سے بھی جدا ہو گیا. تو السلام. سب سے پہلے میں ادھر ویڈیو سننے والے اور دیکھنے والے سب کو السلام علیکم. اس کے بعد اس وقت کی ٹائم کا تو اب سب جانتے ہیں کتنا اہمیت ہے اور اتنا قیمتی ہے. پھر بھی اس بھائی نے اس سردیوں میں خصوصاً دسمبر کا آخری سردی, اس وقت سردی کا تو سمجھ لو کہ یہ آخری جوان 18 سال کی. تو اس دن میں ادھر آ کے میرے پاس آخری گاؤں بارڈر پر آ کے ہمارے دکھ سکھ میں شریک ہونا, اور ہمارا بھائی 1971 سے اس گاؤں میں سے 71 سے جدا ہوا, اب تک ملاقات نہیں ہوا. 2014 میں بڑا بھائی علی محمد گوبا کے نام سے پکارتا شاپ, اس کی بھی کافی ویڈیو ہے آپ لوگ سب دیکھتا ہو. وہ 1971 سے جدا ہوا تھا اور 2014 کے بعد 45 سال کے بعد ہمارا ایک دفعہ ملاقات ہو گیا بڑا بھائی سے. چھوٹا بھائی احمد شاہ, اس سے اب تک ملاقات نہیں ہوا ہے ویڈیو اور یہ فلم کے ذریعے کبھی بات ہوتا ہے. تو ہماری سن کے اس بھائی نے آپ کو 2 بھائی آ گئے ہیں تو ہم آپ سے تو ذرا اس سے نہ میں عالم ہوں, نہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, نہ بولنے کی عادت ہے, نہ پڑھنے کی عادت ہے, نہ سمجھنے کی عادت ہے. تو بس بھائی صاحب نے ادھر کچھ آپ جو بھی بتاؤ تو میں آپ کے سامنے ادھر حاضر ہوں, ناچیز بندہ آپ کی خدمت میں. اس میں غلطی ہوتا ہی ہو, آپ سب سے میں معذرت چاہتا ہوں. اور ہمارا یہی حالت ہے 1971 میں اچھا مہاجر ہو کے ادھر آیا بسا ہوا ہم اس گاؤں کا بہت مشکور ممنون. اپنے بیٹے سے عزیز کے طرح ہمیں پالا, ہمیں ان سے خدمت کیا, کھایا پیا. اس وقت اللہ کے فضل سے اپنا مکان میں بیٹھا ہوا ہوں. اس گاؤں والوں کو بھی بہت شکریہ اور مدد. اس کے بعد علاقہ چھروٹ میں بہت سے جانتا ہوں, ان سب کو بھی مشکور ہوں. اس کے بعد ضلع گانشے میں بھی ہمارا بہت تعلق ہے, ضلع گانشے کا بھی. اور آگے کرو گوما سے لے کے دمسم تک, آگے تھلے روندو کھرما آخری سائڈ تک ہمارا پہچان, ان سب کا ہم مشکور ہوں. پہلا بارڈر جنگ میں ہمیں جدا ہو گیا ہمارا بھائی, اور سب سے پہلے ہمارے بھائی بھی تمناؤں سے سنتا ہے, ہمارے یہ ٹی وی دیکھتے ہیں. اور لداخ کرگل دو تھنگ ٹیکسی تو سارے عوام کو ڈبل ہاتھ جوڑ کے ہمارے طرف سے سلام و سلام بھائی اور احمد شاہ, خصوصاً بھائی دونوں اور گھر کے افراد کو بہت بہت سلام. اس آج نہیں بول سکتے ہیں کیونکہ دل دکھی ہوتا ہے, ہر ایک کے لیے دنیا میں خوشی ہوتے ہیں. ہمارے سے آدھا خوشی چھینا ہوا ہے کیونکہ بھائیوں سے جدا ہو گیا. اس کے بعد ماں باپ ان کا ساتھ ان سے بھی جدا ہو گیا. تو اس سے زیادہ ہم آگے ان کو یادوں میں نہیں بول سکتے ہیں. کا جو بھائی ہے اس طرف, ان کا کیا نام ہے دونوں بھائیوں کا؟ بڑا بھائی کا محمد علی گوبا نام سے پکارتے ہیں, دوسرا احمد شاہ ہے. اور والدہ صاحبہ بھی ادھر تھی؟ نہیں, والد والدہ دونوں یہاں تھا. ادھر والدہ صاحب 2019 میں وفات پایا, والد مرحوم 2023 میں وفات پایا رمضان کی آخری شب قدر کی. ادھر ہمارے گود میں ہی دونوں وفات پایا. تو وہاں سے کوئی بھائی وغیرہ ادھر آئے تھے؟ بس اس کا میں نے اس سے پہلے بھی ٹی وی سماہر میں دیا ہے. ادھر اس اوپر ہمارا 45 ایسے ہے, ایسے 45 جس کا بیٹا ادھر ہے, جس کی بیٹی ادھر ہے, جس کا خاوان ادھر ہے, جس کا شوہر ادھر ہے. یا قبر کسی میں نہیں پہنچ سکتا. صرف ہفتے کے بعد ان کو ٹی وی اور ہم نے فون پہ بتانے کے ان کو چہرہ نہیں ہے. بس اب تک ہمارا نہ خوشی ہو نہ دکھ ہو, نہ بھائی آ سکتے ہیں نہ پہنچ سکتے ہیں. اب اس موقع میں ہمارا ڈبل دکھ ہوتا ہے, پہلے دکھ کے اوپر پھر دکھ ہوتا ہے. تو یہی واقعہ ہے ہمارا. اور اصل آپ بتائیں تو مجھے بولنا پڑتا ہے, ان کا جدائی کی وجہ سے میں ان پڑھ ہو گیا. میں ان پڑھ ہونے کی پہلا مقصد ان کا جدائی. ماں باپ کے لیے ایک کا 7 سال تھا, ایک کا 3 سال تھا. جیسے مرغے نے وہ اپنے بچے گود میں سے نکال کے چھوڑا, جیسے رکھ کے آ گیا. تو یہاں آ کے پار مجھے اتنا انہوں نے پیار کرتا تھا, گھر سے بھی باہر ہو گیا اور روتا تھا. ادھر سے اس وقت ٹھنڈ میں پرائمری اسکول تھا, پرائمری حد تک میں نے پڑھا. اس کے بعد ہمارے سکسا میں ہائی اسکول تھا, سکسا نہیں بھیج دیا, کہیں نہیں بھیج دیا. ان کے دکھ کی وجہ سے مجھے اتنا پیار کے روتا تھا, کہیں جانا نہیں ہے, کہیں جانا نہیں ہے. کیونکہ وہ پہلے ان کا دکھ تھا نا, وہ
दिल से जुदा हुआ था ना, उसकी वजह से माँ बाप दोनों इतना मुझे बिल्कुल यहाँ से छोड़ता भी नहीं था। नहीं तो मैं चलो अभी आपको पता माशाल्लाह है अभी माशाल्लाह से काका आपका उम्र क्या हो रहा है? हमारी उम्र अभी तकरीबन कोई 40-45-50 साल तो होता है। 50 साल में आपके भाई कितनी दफा आपसे मिलने आए हैं? एक दफा जो सिर्फ एक भाई, वो बड़ा भाई 2014 में एक दफा आके तारीफ नंबर 5-6 महीना बैठा है। अभी उससे पहले मुलाकात छोटा भाई से हुआ भी नहीं अब तक। कभी आपने उस तरफ जाने का सोचा है, बस पहुंचता नहीं है तकदीर। अब ना पहुंचने की वजह क्या है? ना पहुंचने की वजह बस उधर वीजा नहीं मिलते हैं। अच्छा बस ये हुकूमत दोनों का आपको पता, हम क्या बता सकते हैं उसके बारे में। तो वहाँ से जब भाई आए थे वो कैसे आए थे? वीजे के जरिए आए थे? वीजे के जरिए वाघा बॉर्डर से आया था। वाघा बॉर्डर, यहाँ से अगर रास्ता खुला होता तो कितनी देर का रास्ता है? क्या बताऊँ, इधर आधा घंटे का रास्ता है। बस स्पीड गया तो आधा घंटा, नॉर्मल गया तो अच्छा घंटे का रास्ता है। टोटल 5 किलोमीटर है। हमारे इस छत के ऊपर से हमारा भाई की छत के ऊपर तक 5 किलोमीटर है। इससे 5 किलोमीटर है? 5 किलोमीटर है। आधा घंटा बस, ज्यादा समझ लो 1 घंटे का कम है। मतलब जिस वक्त आपका भाई आए थे वो वाघा बॉर्डर से आए थे? हाँ। तो वाघा बॉर्डर से यहाँ पहुँचने में कितने दिन लगे थे? वाघा बॉर्डर से इधर आने तक वो 2 दिन से आगे लद्दाख 2 दिन, जो लद्दाख से वो दिल्ली आ गया, दिल्ली में 3 दिन, दिल्ली से लाहौर 2 दिन, 7 दिन, लाहौर से इधर इस्लामाबाद तक 1 दिन जो, उसके बाद ये बायरोट आ गया स्कार्दो में 2 दिन, स्कार्दो से 1 दिन, 12 दिन में हम इस हुकूमत दोनों को, खुसूसन पहले भी मैंने कई वीडियो में अपील कर के थका हूँ, और वज़ीर आज़म को, खुसूसन हमारे वज़ीर आज़म को रिक्वेस्ट है, आपका भी भाई होंगे, आपका भी बहन होंगे, आपका भी दिल होंगे, आपका भी आँख होंगी, क्योंकि और इधर हुकूमत दोनों, उधर हुकूमत हिंद के भी वज़ीर आज़म को रिक्वेस्ट, आपको भी भाई होंगे, आपका भी बहन बेटा होंगे, और आपका बेटा एक शहर से दूसरे शहर में होने से आपको क्या दुख होता है, और हमारा दुख अब तक देखो 55 साल में भाई माँ बहन और बेटा है, किसी का बेटा इधर है, किसी का भाई उधर है, किसी का माँ इधर है, किसी का बाप इधर, किसी का भाई इधर, किसी के बहन उधर। कितने लोग होंगे तकरीबन यहाँ? इधर कोई 15 चूल्हे है जो हम, इसमें कोई घर नहीं है जिसका वहाँ भाई ना हो, यहाँ बहन ना हो। किसी का देखो शोहर उधर हूँ, इधर छोटा माँ औरत ने 3 बेवा है, जो 3 बेवा ने 7 बच्चे इधर पार के अल्लाह के अभी बड़ा हुआ है, शादी हुआ, उनका बच्चा हो गया। देखो आप हुकूमत दोनों को यही रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए आप भी दिल में हाथ रखे, हमारी इस दुख दर्द, इस जुदाई का आप इसका ख्याल रखें। ज़्यादा हम क्या कह सकते, वज़ीर आज़म दोनों के लिए खुसूसन अगर साल में भी एक दफ़ा हमारे मुलाकात करने की इजाज़त दे हुआ तो आप लोगों को बड़ी मशकूर ममनून होंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। और आपका टाइम लेके इधर आने पर दोबारा फिर आपसे मशकूर और ममनून हूँ, बड़ी मेहरबानी आपका। एन नवाजी 99 में करगिल में, इधर की क्या बात है सर, एक ही दिन के मैं आपको कहानी करूँगा, एक ही दिन में सुबह 350 गोला आ गया, जो एक ही दिन में सुबह सलाद से सुबह 8 बजे तक 350 गोले, उसमें हमारे 7 बंदे शहीद हुए, जो उसमें 42 मकान पे हिट हो गया और कोई 47 घर पे जुज़वी नुकसान हुआ था, उसमें हमारा 7 बंदे उसी दिन शहीद हुए। 7 बंदे मैंने खुद देखा है। दो बंदे का जब वो बैठा हुआ था कहीं काम से आके थका हुआ, सामने लगा था, एक टंग उधर पहुंचा था, एक टंग इधर, हाथ उसका 7 टुकड़े हुआ था, जो मैंने खुद उनको क्लोज करके किया है। अब इसका कहानी क्या कर सकते, जो नहीं बयान नहीं कर सकते, बिल्कुल। हमारा अपने साहब, मैंने तकरीबन उसमें कोई 14 साल शहीद हुआ, जो हमारा 14 करीब, उसमें से 7 हमारा अपने सामने लगा शहीद। तो उसको क्या कहानी, इधर कोई जगह नहीं है इस वक्त। हमारे ये सफेदा आपको नजर आते नहीं है, काटते जो काट के मशीन पे ले गया तो मशीन वाले वो काटने के लिए तरसते हैं, क्योंकि काटते बीच में वो शेल आते हैं तो आरी फाट जाते हैं। ये हर देखो ये सफेदा, हर एक चीज के अंदर देखो ये सफेदा, इसको जो दाग नजर आते हैं ना, जो जी कट ये शेल का जगह है, देखो जो करते हैं उस सफेदे के भी देखो, हर सफेदे में जो ये खुबानी उसके अंदर जो निशाना लगा हुआ वो शेल का निशाना है। इतना लगा, एक ही आप अंदाजा करो तो 350 गोले एक ही दिन में आ गए। ठीक भी जंग करते हुए यहाँ गाँव खाली नहीं किया जाए। यहाँ के बच्चे वगैरह तालीम के हवाले से भी कुछ कहिए।
भाई यहाँ का तालीम बाहर नरमाल है सर। ये देखो हाई स्कूल आपको ऊपर नजर आता होगा, जी। ये हाई स्कूल है, ये गिरल स्कूल है हमारा, जी ये गिरल स्कूल है। और तालीम के लिहाज से यहाँ आखिरी बॉर्डर जब भी होता है, हमारे बल्तियों का मिसाल होता है ना, थांगे नहीं थांगा बल्कि मिसाल है ना, तो इस लिहाज से इतना तालीम के लिहाज से नहीं है जो यह हुकूमत से अपील है यहाँ, क्योंकि सस्ती की वजह है या बॉर्डर के आखिरी जगह है, तो इतना तालीम की कोई रोशन नहीं है हमारे यहाँ हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल भी नहीं है। हाँ हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है, देखो अच्छा। इसमें हमारे ये हॉस्पिटल है, ये डिपो है। और ठीक हो गया जी। इस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर वगैरह है? इस डॉक्टर नहीं है, सिर्फ 2-3 नर्सिंग है। बॉर्डर गाँव होने की वजह से यहाँ बंदे आते नहीं है, पोस्ट पे रखते हैं, पोस्ट पे होते हैं। हमारे यहाँ 500 चूल्हे के अंदर इधर एक एलर्जी नहीं है। हमें इधर डिलीवरी केस के लिए बहुत मसाइल होता है, यहाँ से खपुर जाना पड़ता है, स्कार्डो जाना पड़ता है। देखो ये एक क्लास का अस्पताल डिस्पेंसरी है, इसमें भर्ती हुआ है डॉक्टर भी सब कुछ, मगर इधर हमले नहीं है, सिर्फ 2 नर्सिंग है। बाहर देखो ना, आप देखो ना, तो पोस्ट आया हुआ ये बड़ा एक क्लास का अस्पताल है, इसके अंदर तो लाजिमी है ना डॉक्टर तो आया होगा मंजूरी तो होगा ना, इधर आया नहीं है, बैठता हमारी डिलीवरी खुसूसन आपको पता है डिलीवरी केस के लिए बहुत मसाइल, हम डायरेक्ट स्कार्डो जाना पड़ता है, इसके लिए बहुत मसाइल है। और क्या मसाइल है जी आपके गाँव के? बहुत है सर, क्या बताऊँ। देखो वेटरनरी हमारे यहाँ सबसे, इस गाँव का माल मवेशी के लिहाज से सबसे, ये छोरबट का ये समझ लो कि गांचे में सबसे यहाँ माल मवेशी आप नजर आते, देखो ना इस सर्दी में भी ये इतना माल मवेशी छोड़ा हुआ है, देखो बिल्कुल है। इसमें हमारे यहाँ कम से कम 1000 की तादाद में यम होंगे, 1000 की तादाद में जुमू होंगे, और ये बैल कम से कम 500 की तादाद में होंगे। खशार घोड़े सरकारी राशन ढुलाई के लिए खशार घोड़े भी हजारों की तादाद में है। इसकी वजह से देखो उन्हें दरख्वास्त दे कि वो सफेदे के बीच में नजर आता है, इमारत बना के तकरीबन कोई 10 साल हो रहा है, उसमें बंदे भर्ती नहीं है। हमें इतना ही देखो, ये माल मवेशी बीमार हो गया, घोड़े बीमार हो गया, तो इतना मसाइल होते हैं जो क्या बताऊंगा उसका कहानी आपको। सबसे हमारे लिए यही दरपेश है जो इतने देखो बड़ा गाँव में कम से कम हमारे यहाँ लिस्ट में 2000-3000 तक हमारे यहाँ माल मवेशी भैंस वगैरह है, एक डॉक्टर नहीं है जो हमारे लिए सबसे इसका मसला है। जो खुसूसन हमारे घोड़े, इसमें 20 घोड़े हैं जो पंजाबी, जिनका कीमत 12 लाख से 6 लाख तक का है। ठीक, अगर वो भी कोई बीमार हो गया तो हमारे लिए उसको कोई टीका लगाने को भी हमारे पास नर्सिंग नहीं है जो हमारे सबसे हमारे मसला यही वेटरनरी का मसला है। जो वेटरनरी को कोई नर्सिंग भर्ती हो तो इतना माल। स्कूल में टीचर्स वगैरह पूरे हैं? बाहर किधर है जो पूरे नहीं है। इधर देखो ये कॉलेज बना, आप देखो वो बना रहा है, कॉलेज बना रहे हैं अभी? बना रहा है। जी। इधर गेरंग का तालीम लेडीज के लिए मिल भी रहा है, बच्ची पढ़ रहा है, मगर वही हाई स्कूल के जो टीचर है, हाई स्कूल के टीचर पढ़ रहा है। और हमारा हाई स्कूल भी अब हाई स्कूल के नाम पे है, उसका ये PC4 मंजूर नहीं हुआ है। बंदे है मिडिल का, जो मिडिल का बंदे है वही हाई सेकेंडरी इधर पढ़ा रहे हैं, जो हमारे टीचरों इतना हिम्मत करके है। अब तक हमारा हाई स्कूल भी एक उस पर नहीं हुआ, PC4 पे मंजूर नहीं हुआ है, फिर भी मिडिल का टीचर और वही बंदों ने हाई सेकेंडरी तक इधर स्कूल चला रहा है। बहुत हिम्मत वाले जो हमारे टीचर, मगर बहुत कम है टीचर बहुत स्कूल में। ठीक हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए टाइम निकाला। और बहुत शुक्रिया है जो